My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing some questions on probability. We'll be doing quick revision of probability, and then we'll be doing some beautiful questions on probability for arithmetic examination. Start करते हैं session को, and if you're not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to our channel. Also like this content, also like the session. अगर तुम्हें session पसंद आ रहा है तो, और you can also message me on Telegram regarding any questions or queries regarding your preparation in the last minute. Okay, so start करते हैं. So basically, what is probability? Probability of any event is always equal to number of favorable outcomes, number of ways that event can happen divided by number of total outcomes. So probability or chance of an event, that is equal to NE upon NS, number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. And the probability of any event will always be between 0 and 1. Minimum it can be 0, maximum it can be 1. When it is 0, then it is an impossible event. And when it is equal to 1, then it is a sure shot event. That always happens. And if question asks about the probability of that if one event not happening, then that is always equal to 1 minus probability of that event happening. So basically, probability of an event happening plus probability of that event not happening, that is always equal to 1. तो या तो इवेंट होगी या फिर नहीं होगी. सो सम ऑफ बोथ द प्रोबेबिलिटीज दैट इज इक्वल टू 1. ओके, क्वेश्चंस के साथ में बाकी चीजें समझते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, 3 defective oranges are mixed with 7 good ones. 2 oranges are drawn at random, so find the probability that both are defective. 2 we are drawing, so probability that both oranges are defective. So again, probability of this event that both defective, this will be equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. Total cases क्या बनेंगे? Total oranges हमारे पास 3 plus 7 10. 3 defective plus 7 good ones. Total 10 oranges are there. We have to pick 2 oranges at random. Number of ways to select will be 10c2. And a favorable case when both are defective will be 3c2. जब दोनों के दोनों 3 में से select हो जाए 3c2 by 10c2. 3c2 is equal to 3 and 10c2 is 10 into 9 by 2, which is 45. So 3 by 45, answer will be 1 upon 15. Option C will be the answer, 1 by 15. Okay, clear है? Next question. If 5 unbiased coins are tossed, find the probability of getting at least 2 heads. 5 unbiased coins are tossed. ठीक है. सो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम पॉसिबल होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर अनबायस्ड कॉइन दैट इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 में से एक आउटकम है तो 1/2. फॉर टेल ऑल्सो दिस इज 1/2. ठीक है. ऐसे डाइस के लिए जैसे देखते हैं तो डाइस में हमारे 6 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, 1 2 3 4 5 6. और अगर डाइस भी हमारा अनबायस्ड है तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर वेदर दैट इज 1 और 2 और 6 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन 6. टोटल आउटकम 6 है और उनमें से किसी एक के बारे में पूछ रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी बात कर रहा है कॉइन की. 5 कॉइन्स उन्होंने टॉस किया. टोटल केसेस कितने बनेंगे? You're tossing 5 coins. So for the first coin, there are 2 possible options, head or tail. For second also, for third also, for fourth also, and for fifth also. So total outcomes are 2 to the power 5, which is equal to 32. But question is asking about at least 2 heads. The cases can be either there will be 2 heads, or there will be 3 heads, or there will be 4 heads. 2 heads or 3 heads or 4 heads. Okay. So 2 heads वाले cases कितने हो सकते हैं? Total 5 outcomes हैं, उनमें से 2 heads हैं हमारे. So these could be head head, tail tail tail. ठीक है. So basically out of 5 outcomes हमें 2 heads चाहिए. Exactly 2 should be heads. So in how many ways we can select exactly 2 places? In 5c2 ways. तो कितने केसेस बन जाएंगे? 10 केसेस बन जाएंगे फॉर 2 हेड्स, exactly 2 heads. और 3 heads, हमें 3 heads चाहिए तो हेड 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 टेल टेल. अगेन 5 में से हमें 3 heads चाहिए तो 5c3 ways होंगे to arrange heads. 3 heads out of 5, which is also 10. Then we can have 4 heads. So number of ways will be 5c4, which is equal to 5. 4 heads and 1 tail. And lastly, we can have all 5 heads, which will be in exactly 1 way. So total favorable cases are 10 plus 10 plus 5 plus 1. एक सेकंड, यहाँ पे 5 heads लिखना रह गया था क्योंकि 5 coin tosses थे. तो 2 heads, 3 heads, 4 heads और 5 heads. टोटल आ गया हमारा 26. So 26 by 32, probability of greater than equal to 2 heads, that is equal to 26 upon 32, which is 13 upon 60. ऑप्शन सी इज द आंसर. ठीक है. ये तो एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. बट जब भी कभी हमें किसी केस में किसी क्वेश्चन में केसेस काउंट कर रहे हो तो वहां पे हमेशा उन केसेस को काउंट करना चाहिए विच आर लेसर इन नंबर. So we'll be counting those number of cases which are lesser in number. तो यहाँ पे instead of finding out at least 2 heads, हम इसका opposite देख सकते थे when we will be having less than equal to
वन हेड, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी हमारा क्या आएगा, ये आता अगर दिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ई, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी ऑफ ई डैश निकाल लेते, ई बार निकाल लेते और फिर वन में से उसको सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेते। तो ई बार के लिए वैल्यू क्या आएगा, ई बार यानी कि इधर जीरो हेड्स और वन हेड। अब जीरो हेड आने के वेज कितने होंगे, एग्जैक्टली वन ऑल टेल्स, और वन हेड आने का 5C1, यानी कि 6 केसेस बनेंगे टोटल। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई बार, तो 1 माइनस 6 अपॉन टोटल 32 था, तो 1 माइनस 3/16 एंड हेंस 13/16। So this is much easier, isn't it so? ठीक है, next question. If a fair dice is rolled twice, find the probability of getting an outcome that is a prime number. एक fair dice को दो बार हमने रोल कराया, so 6 outcomes on the first are possible, 6 on the second, total cases will be 36, and favorable cases will be when the outcome is a prime number. So prime numbers क्या क्या हो सकते हैं, can be 2, some can be equal to 2, or it can be 3 or 5 or 7 or 11. 2 आने के वेज कितने हो सकते हैं, 2 आने का तो एक ही वे होगा 1 + 1, there is no other way. 3 आने के 1 + 2 और 2 + 1, 5 इट कुड बी 1 + 4, और फिर इसके बाद में एक सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट से एक सब्ट्रैक्ट, फिर एक इंक्रीज करो, सेकंड में सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 + 4, 2 + 3, देन 3 + 2, देन फाइनली 4 + 1, ठीक है। सो देखो ऑब्जर्व कैसे करना है, पहला वाला जो हमारा केस आया वहाँ पे आया 1 और सेकंड नंबर आया 4, तो 1 + 4 से 4 + 1 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 केसेस इन टोटल आएंगे, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 केसेस आएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज होगा, बिकॉज 1 + 2 था तो 2 केसेस आएंगे, यहाँ तो इक्वली था तो 1 केस एक्जैक्टली आएगा। सिमिलरली 7 के केस में 1 + 6 से स्टार्ट होगा, सो अब 1 से लेके जाएगा 6 तक, 6 + 1 तक, टोटल 6 केसेस रहेंगे। 11 के केस में 5 + 6 से स्टार्ट होगा तो 6 + 5 तक जाएगा, ओनली 2 केसेस आ गए, टोटल केसेस आ गए 1 + 2 + 4 + 6 + 2 which is equal to 7 + 8, 15 cases. So answer will be 15/36, which is 5/12. Option D is the answer, 5/12. Okay. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे, ठीक है। और देयर इज अ क्लियर पैटर्न ऑल्सो, अगर हमें कभी भी 2 कॉइन टॉसेस कराने, 2 डाइस रोल कराने हैं, तो इन केस आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, प्राइम तो नहीं, कोई भी आउटकम देखें तो 2 मिनिमम हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 2 आने के केसेस होंगे एग्जैक्टली 1, 3 आने के केसेस होंगे 2, 4 के लिए 3, तो लगातार 1 1 इंक्रीज करेगा, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, और ऐसे ही हमारे 12 के लिए 1, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3, 9 के लिए 4 और 8 के लिए 5, मैक्सिमम आएगा फॉर 7। सो दीज आर टोटल आउटकम्स फ्रॉम 1 to 6 and then decreasing towards 1. Okay, 21 + 15, total 36 cases. Next question. There are 3 bags. Bag 1 has 6 white and 4 black balls. Bag 2 has 4 white and 6 black balls. Bag 3 has 5 white and 5 black balls. A bag is chosen and a ball drawn is white. The probability that it came from bag 2. Now this is a conditional probability question. Conditional probability question. So this question is basically probability of an event A when event B has already occurred. And the formula for this is probability of A intersection B divided by probability of B. Okay, so for example, अगर हम कहें कि there are 2 coin tosses, 2 dice rolls, okay, 2 dice rolls are there, and in that case sum of dice rolls that is equal to 9. So find the probability that first roll outcome was a prime number, was prime. Okay, तो यहाँ पे हमें given क्या है, given है that sum is equal to 9, that is known. So we have to find the probability that first roll outcome was a prime number if total sum of 2 outcomes was equal to 9. ठीक है, थोड़ी देर के इस क्वेश्चन को भूल जाओ, try this question of 2 dice rolls.
what will be the probability that first whole outcome is prime when sum is equal to 9. तो in this case हमें निकालनी है probability if that is event A, this is event A, this is event B, sum equal to 9 is event B. ठीक है, तो टोटल हमारा जो सैंपल स्पेस होगा that is this event. ठीक है, that is event B और हमें निकालना है probability of A such that event B has already occurred. ठीक है, सेम थिंग इज कंडीशनल probability. तो कंडीशनल probability के केस में हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो बन जाता है जिस इवेंट के होने के बाद में हम फर्स्ट इवेंट की probability निकाल रहे हैं. ठीक है, सो सिंपली अगर ऐसे समझ जाओगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉबिलिटी पहले हम निकाल देते हैं इवेंट बी की, या इवेंट बी कितने केसेस में पॉसिबल है, सम 9 कैसे कैसे आ सकता है. सो 9 कैन बी देयर विथ 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4 और 6 + 3. 4 केसेस आर पॉसिबल. तो टोटल केसेस हमारे हो गए 4. इवेंट बी कैन हैपन इन 4 केसेस. अब इनमें से हमें वो केसेस फाइंड आउट करने हैं व्हेन फर्स्ट होल आउटकम इज अ प्राइम नंबर. तो फर्स्ट होल आउटकम कहाँ का प्राइम आ रहा है, 3 + 6 प्राइम आ रहा है, 5 + 4 प्राइम आ रहा है. तो ओनली इन 2 केसेस, तो 2/4 विच इज 1/2 विल बी आवर आंसर. ओके, विच इज 1/2, सो दैट विल बी आवर आंसर. और अदरवाइज फॉर्मूले से निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड. सो न्यूमरेटर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आउटकम फर्स्ट होल आउटकम इज प्राइम एंड सम इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 9. तो सम इक्वल टू 9 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 4 केसेस आ रहे हैं आउट ऑफ 36, तो दिस विल बी 4/36. और न्यूमरेटर में आएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 केसेस एक्जैक्टली आ रहे हैं तो 2/36. अब देख पा रहे हो दोनों केसेस में 36 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाने वाला सिर्फ 2/4 ही है. इसलिए स्ट्रेट अवे में बस वही निकाल लेंगे. ठीक है, स्ट्रेट अवे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तो डिफरेंट मामला बन रहा है. तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, समझेंगे इसको, समझ के करने की कोशिश करते हैं. तो बैग 1 है, बैग 2 है और बैग 3 है. बैग 1 है 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, बैग 2 हैज 4 वाइट बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स. एंड देन बैग 3 हैज 5 and 5 white and black balls. तो वी हैव टू चूज अ बैग फर्स्ट, और उसके बाद में फिर हम बॉल ड्रॉ करेंगे. और बॉल जो ड्रॉ की है वो वाइट है, ये गिवन है क्वेश्चन. तो दिस विल बी इवेंट बी, और फिर हमें निकालना है दैट इट केम फ्रॉम बैग 2, यानी कि इवेंट ए. ओके, सो जब हम बैग चूज कर रहे हैं, वो भी तो पहला केस है हमारा, बैग चूज करने के बैग 1 चूज हो सकता है, बैग 2 चूज हो सकता है, बैग 3 चूज हो सकता है. तो इक्वल प्रॉबिलिटी है, तीनों में से किसी भी एक को चूज करने की इक्वली लाइकली है. सो बैग 1 विल बी चोजन की प्रॉबिलिटी क्या होगा, 1/3. बैग 1 कैन बी चोजन क्योंकि 3 आउटकम्स है पॉसिबल है, 3 में से कोई एक बैग 1 या बैग 2 या बैग 3, तो 1/3 बैग 1. सिमिलरली बैग 2 चूज करने की प्रॉबिलिटी 1/3. सिमिलरली फॉर बैग 3 प्रॉबिलिटी इज 1/3. अब बैग 1 हमने चूज कर लिया एंड वी आर ड्रॉइंग अ बॉल, तो प्रॉबिलिटी ऑफ दैट बॉल बीइंग वाइट, दैट विल बी 6/6 + 4 बिकॉज देयर आर 6 वाइट बॉल्स एंड टोटल बॉल्स आर 10, तो इनटू 6/10 फॉर बैग 1. बैग 2 चूज किया और वहां पे वाइट आने की प्रॉबिलिटी क्या होगा, दैट विल बी 4/10 बिकॉज देयर आर 4 वाइट एंड टोटल बॉल्स आर 10. बैग 3 चूज किया तो वाइट आने की प्रॉबिलिटी क्या होगा, 5/10. ओके, और या तो बैग 1 चूज होगा या बैग 2 या बैग 3, यानी और यानी एडिशन. ठीक है, टोटल हमारा प्रॉबिलिटी आ गया फॉर इवेंट बी, ये वैल्यू आ गया. अब हमें चाहिए प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चीज़ें हुई हैं. तो यानी कि जो हमारे काम का चीज़ था, काम का था क्या था कि बॉल हमने ड्रा किया वाइट और ये आया बैग 2 से, तो ये फेवरेबल है. तो फेवरेबल केस हमारा ये वाला है, बैग 2 से बॉल आया. टोटल केस हमारा ये वाला है, पूरा सब कुछ मिला के. सो फेवरेबल बाई टोटल कर दो, तो 1/3 इंटू 4/10. अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 4/10 को 2/5 लिख सकते थे, बट अगर सबको सिंप्लीफाई कर लेते 2/10 कर लेते, कहीं 1/2 कर लेते, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता. तो सीधे सीधे चीज़ों को वैसा को ऐसे ही रख दो ताकि हमारा डिनोमिनेटर एक्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 1 × 6 यानी 6 + 4 + 5 डिवाइड बाई 30. अब 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में आ गया 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15. तो 4/15 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी 4/15 विल बी आवर आंसर. क्लियर है बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Bag 1 contains 4 white balls and 5 black balls. Bag 2 contains n white balls and 3 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. Then a ball is drawn from bag 2. If the probability that the drawn ball is white is 29/45, so what is value of n? n का वैल्यू इस केस में क्या होगा, बैग 1 में 4 white balls हैं और 5 black balls हैं. And in bag 2 there are n white balls and 3 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. अब ये बॉल जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 1 से बैग 2 में, इट कुड बी अ वाइट बॉल, इट कुड बी अ ब्लैक बॉल. वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है.
व्हाइट होगा तो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक होगा तो ब्लैक का नंबर चेंज हो जाएगा, तो प्रॉबिलिटी हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा प्रॉबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रॉबिलिटी आ रहा है 29/45 फॉर दैट बीइंग व्हाइट। अगर हमने व्हाइट बॉल शिफ्ट किया था तो व्हाइट बॉल शिफ्ट करने का प्रॉबिलिटी क्या होगा, क्योंकि टोटल बैग वन में हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स आर 9। आउट ऑफ दीज 9 व्हाइट बॉल्स आर 4, तो प्रॉबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल बीइंग शिफ्टेड विल बी 4/9। बट जैसे ही व्हाइट बॉल हमने शिफ्ट किया तो व्हाइट बॉल शिफ्ट करते ही नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स विल बी n+1 एंड ब्लैक बॉल्स विल बी 3। टोटल बॉल्स तो n+4 रहेगा। आउट ऑफ n+4 नाउ वी हैव n+1 व्हाइट बॉल्स। तो ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 विल नाउ बी n+1/n+4, क्योंकि अब हमारे पास टोटल बॉल्स n+4 हो गई हैं, व्हाइट बॉल्स n+1 है, सो n+1/n+4। ओके, सेकंड केस में व्हेन वी आर शिफ्टिंग द ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल शिफ्ट करने की प्रॉबिलिटी होगा 5/9 बिकॉज देयर आर 5 आउट ऑफ 9। बट क्योंकि हमने ब्लैक बॉल शिफ्ट किया है तो हमारा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स विल रिमेन अनचेंज, एन ही रहेगा, टोटल बॉल जरूर n+4 हो जाएगा। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल नाउ विल बी n/n+4। Okay, so add these two scenarios and this total is equal to 29/45. तो न्यूमरेटर आ गया हमारा 4 into n+1 plus 5n divide by 9 into n+4 and this is equal to 29/45। 9 से काटा बच गया यहाँ पे 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा 4n plus 5n 9n plus 4, तो 9n plus 4 divide by n plus 4, this is equal to 29/5। ओके, 29/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9n into 5 45n minus 29 है 16n will be equal to 4 into 5 20 और 1 of 16 minus 20 that is equal to 96। 16n is equal to 96, so n will be equal to 6। n will be equal to 6। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 19 unbiased coins and one coin with heads on both sides। तो 19 कॉइन्स तो अनबायस्ड है बट एक कॉइन ऐसा है जिसमें कि बोथ साइड्स पे हेड है, ठीक है, हेड एंड हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एज आउटकम विल बी इक्वल टू 1 इन दिस पर्टिकुलर कॉइन। अदरवाइज बाकी जो 19 कॉइन्स हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 1/2, बट ऑन दिस 20th coin probability of head will be equal to 1 and probability of tail will be equal to 0। A coin drawn at random is tossed and a head turned up। अब एक रैंडमली कॉइन हमने ड्रॉ किया और हेड टर्न अप हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड इज m/n, वेयर m and n आर को-प्राइम नंबर्स, यानी कि को-प्राइम है इंप्लाइज दैट HCF of i is common factor of m and n दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेड आउटकम आया है और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द, एक सेकंड, हेड आउटकम आया है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन इज द अनबायस्ड कॉइन, so that is the conditional probability। ठीक है, probability that it was unbiased if a head is the outcome for that random coin। टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर अनबायस्ड में से आता है 19 आउट ऑफ 20, टोटल 20 में से 19 है अनबायस्ड, 19/20 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग अनबायस्ड कॉइन, और अनबायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 प्लस 1/20 विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग दैट स्पेशल कॉइन, और स्पेशल कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है फेवरेबल कौन सा है, जबकि अनबायस्ड में आया तो न्यूमरेटर में भी यही आएगा 19/20 इंटू 1/2। ठीक है, अब या तो सिंपली डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए 1 को लिख दो 2/2। ठीक है, 1 को 2/2 लिख दो ताकि 40 हमारा रिमूव हो जाए स्ट्रेट अवे, अदरवाइज एलसीएम ले लोगे। अब हमारा 40 रिमूव हो गया, न्यूमरेटर बचा 90 और डिनोमिनेटर बचा 19 + 2 21। 19/21 इज इक्वल टू m/n, और यही वैल्यूज आ जाएगी क्योंकि एचसीएफ हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, राइस कॉमन फैक्टर कोई 19 21 दोनों में कोई भी और कॉमन फैक्टर एडिशनल नहीं है। सो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर which is 21 plus 19 into 21 minus 19 or 441 minus 361 which is equal to 80। 80 will be our answer।
Okay. Next question. A card is drawn from a well-shuffled standard deck of cards, deck of 52 cards. Out of 52 cards in a deck of cards, there are total 4 suits. There are two types of cards, red and black. Red cards are 26. Black cards are also 26. And there are 4 suits in total. 2 in red and 2 in black. ठीक है, heart and diamond in the red. And spade is one of the suits. और एक और सूट रह गया, उसका नाम याद नहीं आ रहा. टोटल 4 suits are there. ठीक है, and in every suit there are 13 cards. Those 13 cards are ace, which is equal to 1. So ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then jack, queen, and king. These are 13 cards. ओके, अब प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पर्सन हु इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स रिपोर्ट्स दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एक्चुअली एन एस. अब एस कितने होंगे? हर एक सूट में देयर इज एग्जैक्टली 1 एस. देयर आर टोटल 4 एसेस. 52 कार्ड्स में देयर आर 4 एसेस. ओके, सो अ पर्सन हु इज नोन टू स्पीक ट्रूथ बोलता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज स्पीकिंग ट्रूथ दैट इज 3/4. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम लाइंग विल बी 1 minus 3/4, विच इज 1/4. अब रिपोर्ट किया है कि कार्ड ड्रॉन इज एस. दो केसेस हो सकते हैं, या तो कार्ड वॉज एक्चुअली एन एस, ठीक है, या तो ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, इट वॉज एन एस, ठीक है, या ही वॉज लाइंग एंड इट वॉज नॉट एन एस. ठीक है, ट्रूथ बोला होगा तो एस रहा होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो क्या है कि एस आया है. और या फिर लाई किया होगा तो एस नहीं रहा होगा. टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले तो ट्रूथ बोला है दैट हैज प्रोबेबिलिटी 3/4, और एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दैट विल बी 4/52. प्लस सेकंड केस, लाई किया है 1/4 प्रोबेबिलिटी, और एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 48/52, बिकॉज देयर आर ओनली 4 कार्ड्स, 4 एसेस, द रिमेनिंग आर नॉन एसेस. टोटल केस आ गया हमारा. और इसमें से काम का केस कौन सा है? व्हेन द कार्ड इज एक्चुअली एन एस. तो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे फर्स्ट वाले. तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 3/4 इंटू 4/52 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 4/52 प्लस 48/4 इंटू 52. तो 4 इंटू 52 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 12. 12/12 प्लस 48, तो 12/60 विच विल बी 1/5. ऑप्शन बी 1/5 विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B are two events such that probability of A intersection B is equal to 0.1 and probability of A such that B has occurred and probability of B such that A has occurred are the roots of the equation 12x square minus 7x plus 1 is equal to 0 in ascending order. So find the value of probability of A union B. हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर दिस इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ठीक है, सो इस केस में हमारा रूट्स क्या कहेंगे? ठीक है, पहले तो निकाल लेते हैं रूट्स की वैल्यू, और उसके बाद में मतलब इंटीजर मान के. सो 7 प्रोडक्ट आ रहा है और 7 सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है 12 इंटू 1 12 आ रहा है. तो 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 12, तो डिवाइड कर दो 12 से. रूट्स आ गए हमारे 1/3 एंड 1/4. ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं कि 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आया था 3x इंटू 4x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1. ठीक है, ऐसे देख लेते हैं. तो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, रूट्स आ जा रहे हैं x इक्वल टू 1/4 एंड 1/3. और असेंडिंग ऑर्डर में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is equal to 1/4. Sorry, A such that B has occurred, that is equal to 1/4. And probability of B such that A has occurred, this is equal to 1/3. और probability of A intersection B, this is 0.1, which is 1/10. अब चुपचाप से वेन डायग्राम बना लेते हैं. डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 10. एलसीएम ले लो 4, 3 और 10 का, 60 आ रहा है. ठीक है, 60 आ रहा है एलसीएम हमारा, तो एलसीएम 60 मान लेते हैं. टोटल हम एलिमेंट्स मान लेते हैं 60 इन दिस सेट.
इफ टोटल एलिमेंट्स आर 60 तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1/10 विच विल बी इक्वल टू 6. A intersection B this will be equal to 6 और probability of A such that B has occurred. तो पूरा जो B का सेट है हमारा इस ये किसकी वैल्यू क्या होगा दिस विल बी probability of A intersection B डिवाइड बाई probability of B. यही तो होगा. तो B probability of A intersection B डिवाइड बाई B दैट इज 1/4 और A intersection B क्या है ये 6 है. तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब B इक्वल 24 हो. भाई जब B 24 होगा तो probability of A intersection B बाई probability of B दैट विल बी 1/4 6/24 1/4 होगा. ठीक है. टोटल B 24 आया है तो ओनली B विल बी इक्वल टू 24 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 18. ये कैसे निकाला हमने probability of A intersection B अपॉन probability of B दिस इज इक्वल टू 1/4 और A intersection B का probability क्या है 1/10. तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि फिर हमने मान लिया P है probability तो सॉल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो P इज इक्वल 2/5. ठीक है 2/5 आ रहा है और टोटल केसेस हमारे क्या बन रहे हैं डिनोमीटर में 60 और न्यूमरेटर में आएगा B का एलिमेंट तो B इक्वल टू 24 आ जाएगा. ये लंबा तरीका है समझ के करोगे ज़्यादा आसान है कि A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स होंगे 1/4 B के एलिमेंट्स के. तो B के एलिमेंट्स के अगर 1/4 है A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स यानी कि B के एलिमेंट्स होंगे 4 टाइम्स ऑफ A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स क्योंकि हमें नोन है A इंटरसेक्शन B 6. सेम लॉजिक से अप्लाई करोगे यहाँ पे probability of B such that A has occurred that is 1/3. ये वैल्यू आएगा हमारा probability of B intersection A डिवाइड बाई probability of A. probability of A 3 टाइम्स होगा यानी कि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 टाइम्स होंगे B इंटरसेक्शन A के. तो A में आ जाएंगे 18 एलिमेंट्स और हेंस ओनली A में आ जाएंगे 12. ठीक है. हमें चाहिए probability of A यूनियन B तो दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल. टोटल तो है 60 A यूनियन B में आ रहा है 12 + 6 + 18 विच इज 36 36/60. So answer will be 3/5. ओके. आंसर आ जाएगा हमारा 3/5. क्या ये क्लियर है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B are two events such that probability of A is equal to 0.7, probability of B is equal to 0.4 and probability of A intersection B bar that is 0.5, so what will be probability of B such that A union B bar has occurred. अब ध्यान से अगर इसका वेन डायग्राम बना लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. टेक योर टाइम पॉज करके अपने एंड पे वेन डायग्राम बनाओ. ठीक है. वेन डायग्राम से चीज़ों को समझो. ए की प्रॉबिलिटी आ रही है 7/10, बी की प्रॉबिलिटी है 4/10 और ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रॉबिलिटी है 1/2. ओके. तो नंबर्स को हम 10 मान लेते हैं, 10 एज्यूम कर लेते हैं. टोटल एलिमेंट्स को 10 मान लेते हैं. टेन का कोई मल्टीपल भी मान लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. ए का प्रॉबिलिटी है 0.7 7/10 सो ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे 7. बी का प्रॉबिलिटी है 4/10 तो एलिमेंट्स इन बी विल बी 4. अब ध्यान से समझना कि अब कह रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार. ठीक है. सो बी बार क्या होगा बी बार यानी कि आउटसाइड बी. तो बी के आउटसाइड जितना भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स तो आउटसाइड बी है. दिस इज आउटसाइड बी. ठीक है. सो ए इंटरसेक्शन बी बार दैट इज 1/2 और 5/10. अब ए इंटरसेक्शन बी बार यानी कि ए एज वेल एज बी बार. तो बी में है अगर एलिमेंट्स 4 तो बी बार में एलिमेंट्स कितने होंगे 6 होंगे. बी बार में एलिमेंट्स होंगे 6 है कि नहीं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बार दिस विल बी 6. बट प्रॉबिलिटी आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार का 5/10 यानी कि ये एलिमेंट्स हमारे ए में भी हैं और बी बार में भी हैं. ए में भी है और बी बार में भी है यानी कि बी के बाहर है और ए में भी है तो 5 हो जाएगा. दिस मस्ट बी 5. दिस पार्ट ओनली ए वाला पार्ट बिकॉज दिस इज ए इंटरसेक्शन बी बार. अगर ये 5 है टोटल ए में 7 है तो 2 हो जाएगा. दिस विल बी 2. 5 + 2 + 2 9 हो गया. तो 1 विल बी आउटसाइड ए. ठीक है. या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बार इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 आ रहा है तो बाहर वाले 1 हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बार हैज अकर्ड. ओके. तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी क्या आएगा प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार डिवाइडेड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार. तो पहले तो ए यूनियन बी बार वाला पोर्शन देख लेते हैं. कहाँ पे आ रहा है ए यूनियन बी बार यानी कि आउटसाइड द बी और उसमें यूनियन ए को ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे काम के एलिमेंट्स क्या होंगे
भाई बी बार तो पूरा का पूरा ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है, अब ए का यूनियन ले रहे हैं साथ में, यानी कि ए पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। तो दिस विल बी बेसिकली एनीथिंग दैट इज आउटसाइड बी, वो तो रहेगा ही रहेगा, ये सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा, बट एडिशनली जो ए का एलिमेंट एक्स्ट्रा है, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी देयर, बाकी सब कुछ रहेगा बट ये भी साथ में रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बार में एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे, टोटल आ गए 8, 5 + 2 + 1 8 एलिमेंट्स आ गए टोटल। और फिर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार। तो बी और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन है, बिकॉज बाकी सब तो बी बार था, तो ओनली दिस पोर्शन इज कॉमन इन बोथ। न्यूमरेटर में यही वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 2, 2/8 विच विल बी इक्वल टू 1/4। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो डायग्राम अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन परेशान करेगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word nature. From the set S, one word is selected at random. Find the probability that the selected word will not have all its vowels in alphabetical order. Will not have all its vowels in alphabetical order. तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, नेचर में सारे के सारे जो लेटर्स हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट, टोटल 6 letters are there. So total words that can be formed will be equal to 6 factorial, which is 720. इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड, एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया, दैट सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव ऑल इट्स वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सारे वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने तरह से हो सकते हैं, भाई वॉवल्स है हमारे ए यू एंड ई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो एक ही केस पॉसिबल है, व्हेन दे आर इन द सीक्वेंस ए यू, पहले ए आए फिर ई आए फिर यू आए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली आए या अलग अलग आए इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नाइटोर, ठीक है, सो दिस इज हैविंग वॉवल्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है, ये सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए, चाहे ए यू कहीं पे भी आ रहे हो। अब ए यू आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, कितने तरह से उनको आपस में अरेंज कर सकते हो, तो टोटल ए यू को अगर अरेंज करें, सिंस दे आर 3 डिस्टिंक्ट, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आर 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6, तो इन 6 वेज दे कैन अरेंज, बट आउट ऑफ दो 6 वेज सिर्फ एक ही तरीका है व्हेन दे आर इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है कि नहीं, तो आउट ऑफ दिस 6 वेज ओनली वन वे इज देयर व्हेन दे आर इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन रिमेनिंग 5 नॉट ऑल आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर सारे के सारे नहीं होंगे, हो सकता है ए और ई साथ, ठीक है, कि मतलब कि दो तो अल्फाबेटिकल, मान लो यू ए ई लिख दिया हमने, तो दो आ रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बट यू तो अलग आ रहे हैं ना, सो नॉट ऑल आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 5 हमारे काम के होंगे, 1 काम का नहीं होगा, और क्योंकि सारे के सारे नंबर्स आने, सारे के कोई भी ऑर्डर में आने का प्रॉबिलिटी इक्वल है, तो 5/6 केसेस हमारे काम के होंगे, तो ये हमारा 5/6 विल बी आर आंसर। नॉट पूछा है ना, तो 5/6 आंसर होगा। अगर पूछता कि ऑल वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसकी प्रॉबिलिटी होगा दैट विल बी 1/6, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे दैट विल 5/6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और टोटल है 6 फैक्टोरियल, सो दैट इज वाई हमारा आंसर आएगा 5/6। ओके, अब अगर फिर भी हमें पूरा निकालना ही होता, तो निकालने के केस में हम क्या करते हैं कि 1 माइनस, इंस्टेड ऑफ प्रॉबिलिटी इस इवेंट का निकालने का 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ई बार निकाल लेते हैं, जबकि सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, और आने के केसेस क्या बनेंगे, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है, प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ठीक है, बजाय अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है फिर भी, वैसे तो आनी चाहिए क्योंकि 6 केसेस हैं, सारे के सारे केसेस इक्वली प्रॉबेबल हैं, तो 1/6 हमारा केस बनेगा, जबकि हमारे सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, और बाकी रिमेनिंग 5/6 केसेस, 5 केसेस में सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे। बट फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम अरेंज करते हैं अपने वॉवल्स को, सबसे पहले अरेंज करते हैं ए यू इन वॉवल्स को। अब इनका सीक्वेंस हमें एक्जैक्टली यही चाहिए, आउट ऑफ दीज 6 प्लेसेस वी हैव टू सेलेक्ट 3 प्लेसेस, कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 63 वेज है वी कैन सेलेक्ट द 3 प्लेसेस जहाँ पे क्या हमें वॉवल्स फिलअप करने हैं। अब फिल करने का ऑर्डर तो एक ही होगा क्योंकि एक ही तरीका सही है, ए ई यू, ठीक है, तो फिल करने का तरीका एक ही है, और रिमेनिंग 3 प्लेसेस में फिर बचे हुए कॉन्सोनेंट्स को फिल कर देंगे, तो दीज विल बी आवर फेवरेबल केसेस, ठीक है, यानी कि पी ई बार वाले, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस केसेस आ गया 63 विच इज 20 इंटू 6 120/720, तो 1 माइनस 1/6 एंड हेंस आंसर विल बी 5/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a factor is chosen at random from the set of all factors of 12 to the power 10
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 टू द पावर 4? एक रैंडमली हमने फैक्टर चूज किया और 12 टू द पावर 10। सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमेशा ऑलवेज गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम जो भूलना ही नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये गलती सबसे कॉमन है जो हो सकती है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका 2 टू द पावर, बिकॉज 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द होल पावर 10, तो 2 टू पावर 20 इंटू 3 टू पावर 10। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर क्या आ सकती है, 0 से 20 तक कुछ भी आ सकता है। सो 21 केसेस फॉर पावर ऑफ 2 एंड 11 केसेस फॉर पावर ऑफ 3। टोटल केसेस आ जाएंगे 231 फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 टू द पावर 10। अब क्वेश्चन में हमें ये भी चाहिए कि द चोजन फैक्टर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 6 टू द पावर 4 एज वेल। अब 6 टू द पावर 4 क्या है, दिस इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4। जो हमारा फैक्टर हम चूज करेंगे उसमें 2 का पावर शुड बी मिनिमम 4 एंड 3 का पावर शुड बी मिनिमम 4। isn't it so? So any factor, let us say that is 2 to the power m into 3 to the power n. So condition ये है that m must be greater than equal to 4 and n must be greater than equal to 4 also. तो कितने केसेस पॉसिबल हैं भाई, मैक्सिमम पावर हो सकता है हमारा फैक्टर में, मैक्सिमम पावर कैन बी 20 और मिनिमम पावर हैज टू बी इक्वल टू 4 फॉर 2। तो 2 का पावर m हैज टू बी बिटवीन 4 एंड 20। तो कितने केसेस आएंगे, 4 5 6, 4 से 20 तक आएंगे 17 केसेस। सिमिलरली n हैज टू बी बिटवीन 4 एंड 10। टोटल केसेस विल बी 10 माइनस 4 प्लस 1 7। सो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे हमारे 7 इंटू 17। ओके, 7 इंटू 17 आ जाएंगे, दीज आर फेवरेबल केसेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्टर बीइंग अ मल्टीपल of 6 to the power 4 will be equal to 7 into 17 by 231। ओके, 7 से तो काटा पीटी हो जाएगी ना, तो 7 से वैल्यू आ जाएगा 33, तो 17 by 33 will be our answer। ओके, 17 by 33 will be our answer। क्या क्लियर है? अब इसी को और स्मार्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 टू द पावर 4, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो 12 टू द पावर 10 को 6 टू द पावर 4 से, और अब जो नंबर आएगा उसके फैक्टर्स निकाल लो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल केसेस तो यहाँ से निकाल ही लोगे, यानी कि वो हमारे फेवरेबल केसेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टोटल फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे, 2 टू पावर 20 इंटू 3 टू पावर 10। टोटल केसेस आ गए हमारे, सॉरी 10 था, 21 इंटू 11। और यहाँ से जो नंबर आएगा अब उसके फैक्टर्स निकालोगे वो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। नंबर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 12 टू द पावर 10 यानी 2 टू पावर 20 इंटू 3 टू पावर 10 डिवाइड बाई 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4। तो आ गया 2 टू पावर 16 इंटू 3 टू पावर 6। सो फेवरेबल केसेस आ गया 17 इंटू 7। तो 17 बाई 33 इज अवर आंसर। ओके, लॉजिक क्या है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट चोजन फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ 6 टू द पावर 4। अब 6 टू द पावर 4 का एक मल्टीपल होगा। ठीक है, और ये जो मल्टीपल है 6 टू द पावर 4 का, दिस मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर 10। दिस मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर 10, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर इज इक्वल टू 12 टू द पावर 10। यही तो है कि नहीं? तो हमें के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जितने के की वैल्यूज आएंगी उतने ही हमारे फैक्टर्स होंगे। So can we write this as k into I? This is equal to 12 to the power 10 divided by 6 to the power 4। अब ये जो नंबर आ गया, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k इंटू सम अदर इंटीजर। तो क्या हो गया अल्टीमेटली k इंटू सम अदर इंटीजर, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, k एक फैक्टर ही तो हो गया। यहाँ साफ साफ दिख रहा है दैट k इज अ फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर 10 अपॉन 6 टू द पावर 4। और k कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो इंटीजर है कैन बी 1, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इट कैन बी एनी फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर 10 बाई 6 टू द पावर 4, क्योंकि i भी एक फैक्टर है और k और i अपना प्रोडक्ट जो है k और i का, दैट इज बेसिकली 12 टू पावर 10 बाई 6 टू पावर 4। तो k इज एनी फैक्टर ऑफ, नॉट जस्ट ए फैक्टर बट एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर चलेगा। तो दैट इज वाई टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A be a square matrix of order 2 with entries either 0 or 1 and E be the event that A is an invertible matrix, then find the probability of E।
ओके कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं टोटल, क्योंकि मैट्रिक्स हमें ऑर्डर 2 की बनानी है, टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, एंड एवरी एलिमेंट एवरी एंट्री कैन बी इधर 0 और 1। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो अगर एलिमेंट्स देखें तो ए बी सी डी, देयर आर 4 एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट के लिए केसेस क्या है, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। तो 2 पॉसिबिलिटीज फॉर ईच ऑफ देम, और टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज फॉर ईच, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल केसेस बनेंगे 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 16। दीज विल टोटल केसेस 16, टोटल मैट्रिसेस बनेंगे 16। हमारे काम की मैट्रिसेस होंगी विच आर इन्वर्टिबल, and if A is an invertible matrix, then determinant of A, which is also represented like a mod sign, so mod of A, determinant of A should not be equal to 0, और अगर determinant of A is not equal to 0, only and only then the matrix is invertible। determinant of A 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, डिटरमिनेंट होगा ए डी माइनस बी सी, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे 0 और 1 है, ठीक है, सो ए डी का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कैन बी 1 और 0, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। सिमिलरली बी सी कैन बी 1 और 0। तो हमारा जो सम है, इनका डिफरेंस है, वो 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब बोथ आर इक्वल टू 1 या बोथ आर इक्वल टू 0, तब तो आ जाएगा रिजल्ट हमारा 0। और ये वाले केसेस हमको चाहिए नहीं। चाहिए कौन से हैं, जब या तो फर्स्ट 1 आ जाए, यानी ए डी 1 हो, बी सी 0 हो, तो चलेगा ये, क्योंकि डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा, या फिर ए डी 0 हो, बी सी 1 हो, ये भी चल जाएगा, बिकॉज डिफरेंस हमारा -1 आ जाएगा। तो दीज टू आर फेवरेबल केसेस। ओके, ये दोनों हमारे काम के केसेस होंगे, और जितने हमारे पहले केस के मेथड्स नंबर्स आएंगे वही सेम दूसरे केस में आएगा, क्योंकि बात तो एक ही है भाई, ए डी 1 हो बी सी 0 हो, या वाइस वर्सा, ए डी 0 हो बी सी 1 हो, तो किसी एक केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, दूसरे केस में भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो पहले वाले केस में निकाल लेते हैं, व्हेन ए डी इज इक्वल टू 1 एंड बी सी इज इक्वल टू 0, तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है फॉर ए बी सी डी। अब अगर ए डी इक्वल टू 1 है तो इसका तो एक ही तरीका पॉसिबल है, व्हेन बोथ ए एंड डी हैव टू बी इक्वल टू 1, ए भी 1 होगा और डी भी 1 होगा, तभी ए डी 1 आ सकता है। बट प्रोडक्ट 0 आने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों एलिमेंट 0 हो जाए, दोनों एंट्री 0 हो जाए, या कोई एक 0 हो जाए। सो इधर बोथ आर इक्वल टू 0, या फिर बी 0 हो सी 1 हो, या फिर बी 1 हो सी 0 हो। तो दीज विल बी टोटल 3 केसेस पॉसिबल, जब ए डी 1 हो और बी सी 0 हो। सिमिलरली जब वाइस वर्सा होगा तब भी हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। तो टोटल केसेस हो गए हमारे 3 + 3 6 फेवरेबल वाले, और टोटल आए थे ओवरऑल 16। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6/16 विच इज 3/8। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 3/8। ओके, 3/8 will be the answer in this case. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two friends X and Y are rolling a fair 6-sided die alternately. X rolls first. The person who first rolls 6 wins the game. Find the probability that X wins the game. ठीक है, X वही पहला रोल कर रहा है और क्वेश्चन से probability पूछ रहा है that X is winning the game. और कौन जीतेगा, that person will which will be rolling first 6 in the game. ठीक है, और probability of rolling 6 is equal to 1/6, and probability of rolling not 6 यानी कि any other number that will be 1 - 1/6 which will be 5/6। अब अगर x को जीतना है तो x को पहला पर्सन होना पड़ेगा विच विल बी रोलिंग 6। तो इधर सिंस x इज स्टार्टिंग द गेम, तो या तो x पहले चांस में ही जीत जाए, ठीक है, इधर x विल बी विनिंग ऑन द फर्स्ट चांस, और x वाज अनेबल टू रोल 6 ऑन द फर्स्ट चांस। फिर उसके बाद में y इज ऑल्सो अनेबल टू रोल, क्योंकि जीतना किसको है, x को, और फिर थर्ड चांस में x ने रोल कर दिया। x या तो पहले चांस में जीत गया, या फिर जब थर्ड चांस आया x का सेकंड चांस आ गया, या फिर x और y फेल हुआ, फिर फर्दर x फिर से फेल हुआ, y फिर से फेल हुआ, फिर x सक्सीड कर गया, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विनिंग द गेम विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहली बार में जीत गया 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा, और यानी एडिशन। सेकंड केस में x ने पहली बार में 6 नहीं लाया, सो दैट विल प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। फिर y was also failing on the first chance, so 5/6, then x succeeded on x's second chance which will be 1/6 plus 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6, and then x succeeded because he got 6, ठीक है। सो एंड सो क्लियरली जीपी बन रहा है, फर्स्ट हमारा 1/6, देन आ रहा 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6,
then 5/6 to the power 4 into 1/6 and so on, and that is the infinite GP. टोटल सम क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा a अपॉन 1 यानी कि 1/6 अपॉन 1 माइनस r क्या है 5/6 होल स्क्वायर यानी 25 अपॉन 36. So 1/6 upon 11/36 and hence 1/6 into 36/11. So 6/11 will be our answer. Answer will be 6 upon 11. Option B. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. क्या ये क्लियर है? Next question. The probability of Atul hitting the target is 3/5. Find the least number of shots Atul must make to ensure that the probability of him hitting the target is at least 99%. ठीक है, अतुल हिटिंग द टारगेट की probability है 3/5 and we have to find the least number of shots that Atul must make to ensure that the probability of him hitting the target is at least 99%. ठीक है, तो अगर एक ही टारगेट एग्जैक्टली अतुल हिट करता है, only one target, only one times he fire the shot, तो in that case probability क्या होगा 3/5 होगा, that he will be hitting the target. And probability that he misses the target will be 2/5. ठीक है, but if he fires 2 shots, in that case he is going to miss both the targets. इसकी probability क्या होगा 2/5 into 2/5. And in remaining cases यानी कि 1 minus 2/5 square 2/5 whole square, in these remaining cases he will be hitting at least once. भाई कम से कम एक बार तो हिट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम हिटिंग द टारगेट. अब कितने बार हिट करे, एक बार भी कर दिया तो काम हो गया, तो एटलीस्ट वंस हिट करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 minus 2/5 होल स्क्वायर. सिमिलरली अगर देखो तो टू शॉट्स में आ रहा है 1 minus 2/5 स्क्वायर, ऐसे एन शॉट्स में आएगा 1 minus 2/5 टू द पावर एन, बिकॉज सारे के सारे शॉट्स मिस कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 2/5 टू द पावर एन. सो 1 minus 2/5 टू द पावर एन, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस. जब भी कहीं हिटिंग द टारगेट मेंशन हो, सो दिस ऑलवेज इंप्लाइज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस. कम से कम एक बार हिट किया, एक बार हिट किया तो भी चलेगा, दो बार किया तो भी चलेगा, मिनिमम एक बार करना चाहिए. सो दैट विल 1 minus 2/5 टू द पावर एन. So as per the condition of the question, 1 minus 2/5 to the power n, this has to be greater than equal to 99/100 or 0.99. And if that is the case, तो ultimately 2/5 to the power n को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, 99/100 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो 1 minus 99/100 this will be greater than equal to 2/5 to the power n. यानी कि effectively 2/5 to the power n, this should be less than equal to 1/100. So what can be May F n in this condition? ठीक है, या 0.4 to the power n, this is less than equal to 0.01. ओके, ये हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है. अब आसान तरीका क्या होगा, 2/5 टू द पावर n में 2/5 टू द पावर 3, 2/5 टू द पावर 4 ये सब देखो. बट ज़्यादा आसान क्या होगा 2/5 के बजाय 4/10 में डील करना, बिकॉज जब डिनोमिनेटर में 10 होगा तो चीज़ें कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा, तो 4/10 रखते हैं. ठीक है, सो इफेक्टिवली आ रहा है 4/10 टू द पावर n, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.01. तो 4/10 होल क्यूब विल बी 64/1000. रफली आ रहा है 0.064. रफली का एग्जैक्टली आ रहा है 0.064, which is much larger than 0.01. 4/10 to the power 4. This will be 256/10,000. So 0.0256. 4/10 to the power 5. This will be 1024/1 followed by 5 zeros. So 0.01024. अभी भी दिस इज लार्जर देन 0.01. बट अब क्योंकि बिल्कुल क्लोज पहुंच गया है, तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम 4/10 मल्टीप्लाई करोगे तो हम लेस देन 0.01 हो जाएंगे. तो 4/10 टू द पावर 6 विल बी लेस देन 0.0, बिकॉज ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट 0.01 है. तो अब कैलकुलेट नहीं करना है, क्लियरली लेस देन 0.01 होगा, क्योंकि 4/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4/10 टू पावर 5 ऑलरेडी हमारा क्लोज टू 99% था, क्लोज टू 1% था. ठीक है, रफली 1%, थोड़ा सा ज़्यादा था, तो अब लेस देन हो जाएगा. तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा दैट मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स शुड बी इक्वल टू 10. सॉरी, शुड बी इक्वल टू 6, 10 नहीं, शुड बी इक्वल टू 6. ओके, क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
In a highly competitive selection process, three candidates A, B, and C are evaluated independently. The odds in favor of A being selected are 4:5. The odds against B being selected are 7:2. The odds in favor of C being selected are 1:2. So what is the probability that at least two of the three candidates are selected? सबसे पहले odds का फंडा समझ लेते हैं कि अगर कभी भी कह रहा है क्वेश्चन odds in favor of event A are P/Q. ठीक है, सो पहले जो मेंशन है दैट P दिस इज ऑड्स इन फेवर, यानी कि जितने केसेस में केसेस जबकि हमारा आउटकम फेवरेबल है, तो दिस इज बेसिकली फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। और जो बाद में मेंशन है दैट इज अनफेवरेबल आउटकम, दोनों को मिला के हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम P+Q। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग विल बी फेवरेबल विच इज P डिवाइड बाई P+Q। और कभी ऐसा भी हो सकता है ऑड्स अगेंस्ट मेंशन, odds against an event P, if that is mentioned that they are R/S, तो अगर मेंशन है कि odds against, तो पहले जो मेंशन है दैट इज odds against, यानी कि दिस इज अगेंस्ट when event B is not happening, बाद वाला फेवरेबल होगा और दोनों मिला के टोटल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल टू, फेवरेबल आ रहा है बाद में S/R+S। ओके, आप पॉज करके तसल्ली से सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग विल बी इक्वल टू, क्योंकि ए में क्या है ऑड्स इन फेवर मेंशन है, सो 4 विल बी फेवरेबल और टोटल होंगे 9, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी में मेंशन है ऑड्स अगेंस्ट, सो बाद वाले काम के होंगे फेवरेबल होंगे, तो 2/7 + 2, 2/9। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी अगेन इन फेवर मेंशनड है, सो 1/3। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो या तो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, 2 सेलेक्टेड और 3 सेलेक्टेड। अब 2 सेलेक्टेड में 3 केसेस बनेंगे, या तो ए बी सेलेक्ट हो, या बी सी सेलेक्ट हो, या ए सी सेलेक्ट हो। ए बी सेलेक्ट होंगे तो सी को सेलेक्ट नहीं करना है, बी सी सेलेक्ट होंगे तो ए को सेलेक्ट नहीं करना है, ए सी सेलेक्ट होंगे तो फिर बी को सेलेक्ट नहीं करना है। और जब तीनों सेलेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली ए बी सी ऑल विल बी सेलेक्टेड। अब या तो ये केसेस निकाल लेते हैं, बट अगर इसका अगेंस्ट निकालते हो, यानी कि हम वो केसेस निकालें जबकि एक्जैक्टली एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, 0 सेलेक्ट हुए, वहाँ पे भी इतने ही केसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसको कैलकुलेट करने का। तो ये वाले केसेस ही कैलकुलेट करते हैं, इधर 2 आर सेलेक्टेड और ऑल 3 आर सेलेक्टेड। ठीक है, सो सबसे पहले टोटल केसेस कितने बने, 4 बने हमारे। तो 2 सेलेक्टेड में आएंगे केसेस ए एंड बी आर सेलेक्टेड, सी रिजेक्टेड, और ए इज नॉट सेलेक्टेड एंड बी एंड सी आर सेलेक्टेड, और ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए बच गया। सो ए सेलेक्टेड, बी रिजेक्टेड, सी सेलेक्टेड, और ऑल 3 आर सेलेक्टेड, ए एज वेल एज बी एज वेल एज सी। सो ए बी सेलेक्टेड, ए की प्रॉपर्टी आ जाएगी 4/9। डिनोमिनेटर को वैसे ही रखो, 9 × 9 × 3 सब में ये रखेंगे। तो ए सेलेक्ट हो गया, 4 आ गया केस। ठीक है, बी सेलेक्टेड, 2 आ गया, और सी रिजेक्टेड, तो दैट इज डिनोमिनेटर 3, तो रिजेक्ट होने की प्रॉपर्टी हो जाएगी 2/3, सो इंटू 2, और यानी एडिशन। डिनोमिनेटर में ये रहेगा 9 × 9 × 3। ए इज रिजेक्टेड, तो 4/9 था सेलेक्ट होने का, 5/9 होगा रिजेक्ट होने का, तो 5 × बी सेलेक्टेड 2, सी सेलेक्टेड 1, प्लस 9 × 9 × 3। ए सेलेक्टेड, तो प्रॉपर्टी इज 4, बी रिजेक्टेड, प्रॉपर्टी हो जाएगी 9 - 2 7, सी सेलेक्टेड 1, प्लस 9 × 9 × 3। अब तो सारी सेलेक्ट हैं, तो ये तो सीधे ही आ रहा है 4 × 2 × 1। डिनोमिनेटर में आ गया 9 × 9 × 3, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4 × 2 × 2 16, प्लस 10 प्लस 28 प्लस 8, 28 + 8 इज 36, प्लस 26 आ गया 62/81 × 3, 243, 62/243, दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर इन दिस केस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A board has 16 squares as shown in the figure. 2 squares are drawn at random. The probability that they have no side in common. Total 16 squares हैं और हमें 2 स्क्वायर्स एग्जैक्टली ड्रॉ करना है सच दैट दे हैव नो साइड्स इन कॉमन। कोई भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो या तो कॉमन नहीं होने वाले सारे के सारे केसेस देख लें, या फिर कॉमन होने वाले सारे केसेस देख लें और फिर उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, उन केसेस को हम एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो कॉमन केसेस कैसे कैसे बन सकते हैं, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना पॉसिबल होगा, वी आर सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ 16, तो टोटल इज 16c2, 16 × 15/2 विच इज 120। अब कॉमन वाले केसेस देख लेते हैं।
ठीक है, कि एटलीस्ट वन साइड इज कॉमन। तो इसको देखने के दो तरीके, एक तो हॉरिजॉन्टली काउंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली कितने आएंगे, और फिर वर्टिकली देख लेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। तो दोनों सेम ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है अल्टीमेटली। तो हॉरिजॉन्टली सबसे पहले फर्स्ट रो में देखते हैं, ठीक है, कॉमन साइड तो एक ही आएगा वैसे सब में। तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन हो सकता है, या फिर सेकंड एंड थर्ड में कॉमन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में दिस साइड इज कॉमन, सेकंड एंड थर्ड में दिस इज कॉमन, एंड थर्ड एंड फोर्थ में दिस इज कॉमन। यानी कि एक रो में देर आर थ्री केसेस, थ्री पेयर्स आर देयर। तो थ्री पेयर्स इन फर्स्ट रो, थ्री विल बी इन द सेकंड रो, थ्री विल बी इन द थर्ड रो, एंड थ्री विल बी इन द फोर्थ रो। यानी कि 12 पेयर्स आर देयर इन टोटल हॉरिजॉन्टली, जब हमारा साइड कॉमन आ रहा है। सिमिलरली जब वर्टिकली देखेंगे तो वर्टिकली फर्स्ट और सेकंड में कॉमन हो सकता है, दिस साइड इज कॉमन, सेकंड और थर्ड में कॉमन हो सकता है, और थर्ड और फोर्थ में कॉमन हो सकता है। तो यहाँ भी हमारे थ्री आ रहे हैं इन एवरी केस, थ्री इन फर्स्ट कॉलम, थ्री इन सेकंड कॉलम, थ्री इन थर्ड एंड थ्री इन फोर्थ। टोटल 12 केसेस आ गए। तो टोटल केसेस हमारे यहाँ 12 + 12 24 पेयर्स बने हमारे, जबकि वन साइड इज कॉमन। आउट ऑफ दीज टोटल 120 केसेस, तो हमारी प्रॉबिलिटी दैट नो साइड इज कॉमन विल बी 1 माइनस, जबकि कॉमन है तो 1 - 24/120, तो 1 - 1/5, आंसर विल बी 4/5। ओके, आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 4/5। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर भी एक बार एक और मेथड देख लेते हैं, हालांकि ये इजी है और ऐसे ही करेंगे, बट फिर भी एक और मेथड समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम स्क्वायर वाला केस देखेंगे या इस तरह से 4x4 है, 6x6 है, तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा तीन केसेस बनेंगे, तीन टाइप के केसेस बनेंगे। एक तो केस बनेगा जबकि हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो कॉर्नर में हो, कॉर्नर वाले स्क्वायर्स, फॉर एग्जाम्पल दी स्क्वायर्स। ठीक है, कॉर्नर के स्क्वायर्स कितने होंगे, दिस इज द कॉर्नर स्क्वायर, दिस इज द कॉर्नर स्क्वायर, दिस इज द कॉर्नर स्क्वायर एंड दिस इज द कॉर्नर स्क्वायर, दिस इज द कॉर्नर स्क्वायर। इनको हमेशा सेपरेटली कंसिडर करोगे। ठीक, कॉर्नर का स्क्वायर हो सकता है, और देयर कैन बी साइड वाला स्क्वायर, यानी कि साइड बट नॉट कॉर्नर। दिस इज साइड वाला स्क्वायर। ओके, साइड बट नॉट कॉर्नर। एंड थर्ड केस इज इन साइड वाला स्क्वायर, जो कि ना तो कॉर्नर है और ना ही साइड है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, नीदर कॉर्नर नॉर साइड, तो दिस इज द केस ऑफ इन साइड अ स्क्वायर ऑन द इन साइड। ठीक है, अब तीनों केसेस में देखते हैं किस केस में हमारे कितने साइड्स कॉमन, कितने कॉमन वाले स्क्वायर मिल सकते हैं। तो इन द फर्स्ट केस सिनारियो, जबकि कॉर्नर वाला स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया, देयर आर टू स्क्वायर्स एग्जैक्टली विच आर हैविंग अ कॉमन साइड, क्योंकि दो साइड्स तो एक्सपोज्ड हैं कॉर्नर वाले स्क्वायर की, सो ओनली टू स्क्वायर्स आर देयर विच आर इन कॉमन। ठीक है, तीन केसेस बने हमारे, कॉर्नर, साइड एंड फाइनली इन साइड। और फिर नंबर देख लेते हैं, कॉर्नर वाले स्क्वायर्स कितने होंगे, टोटल 4 कॉर्नर्स आर देयर, 4 होंगे। साइड वाले स्क्वायर्स 2 ऑन एवरी साइड, तो 2 ऑन दिस साइड, 2 ऑन दिस साइड एंड हेंस 2 ऑन ऑल द साइड्स, टोटल 4 साइड्स। तो 2 × 4 8 आर देयर साइड वाले स्क्वायर, और रिमेनिंग जो इनसाइड बचेंगे वो इनसाइड वाले स्क्वायर हो जाएंगे। तो 16 टोटल स्क्वायर्स हैं, 16 - 12, 4 आर ओनली इनसाइड स्क्वायर्स। ठीक है, या फिर अगर n क्रॉस n होता, अगर हमारा n क्रॉस n का स्क्वायर बोर्ड होता, तो इन दैट केस कॉर्नर के स्क्वायर्स कितने होंगे, n कॉर्नर्स होंगे, इनसाइड वाले स्क्वायर्स होंगे n - 2 होल स्क्वायर, रिमेनिंग विल बी साइड वाले स्क्वायर्स। ओके, विच विल बी n × n - 2। ठीक, सॉरी 2n, देखो n - 2 आएंगे एक साइड में, और टोटल साइड्स हमारे पास होंगी 4 होगा, 4 × n - 2। ठीक है, n - 2 होल स्क्वायर एंड 4 × n - 2। अदरवाइज कॉर्नर के n आ गए, n - 2 होल स्क्वायर आ गए इन साइड में, और बचे हुए सारे साइड में होंगे। ठीक है, अब कॉर्नर वाले स्क्वायर के केस में कितने कॉमन वाले मिलेंगे हमें पेयर्स, दो पेयर्स मिलेंगे, साइड कॉमन वाले पेयर्स मिलेंगे दो। साइड वाले के केस में कितने मिलेंगे, 1 2 एंड 3, बिकॉज वन साइड इज एक्सपोज, तो बाकी सब में कॉमन मिलेगा। और इन साइड वाले केस में, क्योंकि ऑल साइड्स आर इन साइड, तो सारे के सारे जो कॉमन पेयर्स मिलेंगे हमें ऑल 4 साइड्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ से टोटल पेयर्स काउंट कर सकते हो। ठीक है, टोटल पेयर्स आ जाएंगे, फर्स्ट केस में 4 × 8 आ गए, सेकंड में आ गया 24, और थर्ड में आ गया 16। बस ध्यान ये देना है, जब हम इस तरह से काउंटिंग कर रहे हैं तो हमेशा सारे के सारे जितने भी केसेस हैं हमारे, सारे के सारे केसेस डबल काउंट होंगे।
डबल काउंट होंगे, सारे पेयर्स हमारे 2 बार काउंट होंगे, क्योंकि एक बार फॉर एग्जांपल जब हमने किसी एक पेयर को ले लो तो समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस पेयर को सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पेयर को, तो ये पेयर हमारा 2 बार काउंट हुआ। एक बार कब काउंट हुआ? जब हमने कॉर्नर वाले स्क्वायर के थ्रू इसको देखा, ठीक है, जब हमने इसको कॉर्नर वाले स्क्वायर के थ्रू देखा। और एक बार तब काउंट हुआ जब हमने साइड वाले इस स्क्वायर के थ्रू देखा, तभी तो काउंट होगा। तो सबके सब पेयर्स का डबल काउंटिंग होगा। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद में यू विल बी डिवाइडिंग बाई 2। तो 8 + 24 + 16 दैट इज इक्वल टू 48 बाई 2 करोगे, यानी 24 पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पहला मेथड था वो इजी है, वैसे ही सॉल्व करोगे, बट अदरवाइज ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में इस मेथड का भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई बिलीव कि जो भी कुछ हमने डिस्कस किया सारे की सारी बातें समझ में आएंगी, कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना, और अपना फीडबैक भी जरूर कमेंट सेक्शन में देना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।